एनसीईआरटी में टॉपिक काफी पहले है, नहीं जानबूझ के। So as the name suggests, dike means there should be two poles. अभी तक जो हम पढ़ रहे थे that was for a point charge, the Coulomb's law for a single point charge. डाइपोल का मतलब एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, दोनों को जब हम रखते हैं कुछ स्मॉल डिस्टेंस, a negative charge and positive charge separated by small distance. So we can write the definition: two equal and opposite charges, separated by small distance. Two equal and opposite charges separated by small distance is called an electric dipole. तो ये जो डाइपोल की हम बात करें, इसमें एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, सिंगल नेगेटिव और सिंगल पॉजिटिव चार्ज हो, इसको कन्वेंशनल डाइपोल भी बोलते हैं. एंड द नेचुरल डाइपोल्स आर लाइक नेचुरल डाइपोल केमिस्ट्री में ऑल पोलर मॉलिक्यूल्स आर बेसिकली अ डाइपोल. लाइक HF क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, सो वन इज नेगेटिवली चार्ज, another is positively charged. HF, HCl, HBr, these are the natural dipoles. So two equal and opposite charges separated by small distance is called dipole. इसको अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? Because there are some properties, some specific properties associated with dipole. The point charge के लिए था. Similarly, when a negative and a positive charge comes together, some formulas will change. Right? So dipole जैसे हम chemistry में करते हैं. In chemistry we have different dipoles. So मैं बताऊंगा इनमें से कौन सा वाला मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा पोलर है. Then we represent it in terms of a vector called dipole moment vector. और वो ये represent करता है कितना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, how much electron is shifted towards more electronegative atom. Right? More electronegative atom की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, so that shifting of electron. In the case of physics, जो उसका equivalent version निकलता है dipole moment. This is equivalent physical dipole represented by a negative charge and a positive charge separated by some distance. The strength of this dipole, यानी इसका एक polar nature कितना है, इसकी वजह से जो चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो किस क्वांटिटी पे डिपेंड करती है. To represent the strength of this dipole, we use a vector called dipole moment vector. Dipole moment vector is the product of electric dipole moment. This is a vector quantity and it is the product of charge and distance between them, represented by P. इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज, बीच में थोड़ा सा गैप, लाइक एनी पोलर मॉलिक्यूल. उस पोलर मॉलिक्यूल में अगर केमिस्ट्री के टर्म से बात करें, देन व्हिच इज मोर पोलर इन नेचर, वो किस पे डिपेंड करेगा? उसके डाइपोल मोमेंट पे. फिजिक्स के टर्म्स में बात करें तो कौन सा डाइपोल ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई करेगा, कौन से डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, दैट विल आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय द डाइपोल मोमेंट ऑफ दैट डाइपोल. सर यस सर, अगर हम कोई दो चार्जेस को आपस में मतलब एक जहाँ पे उनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो साथ में मिले, तो उसको ऐसे कह सकते हैं कि जो चार्ज है डाइपोल बन गए क्योंकि इंटरेक्शन वाले साथ. एक नेगेटिव एक पॉजिटिव को डाइपोल बोलेंगे उसको. ओके सर. Dipole moment is the product of charge and distance between. It is the product of charge and distance between them. So product of charge and distance is defined as dipole moment vector. It is a vector quantity and it represents the strength of the dipole in the surrounding region. केमिस्ट्री में जो हम डाइपोल मोमेंट वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट. जैसे HF के केस में इट विल बी फ्रॉम हाइड्रोजन टुवर्ड्स फ्लोरीन, और पीछे कट का सिंबल लगा देते हैं. This cut represent this symbol represent the direction of electron shifting.
In the case of the electric dipole, physical dipole, the dipole has vector quantity. The dipole moment is the vector quantity, which is the product of charge and distance. Dipole moment P is equal to Q into L. Where L is the vector joining negative charge to positive charge. So dipole moment vector quantity and the direction is from negative towards positive. Electric dipole moment. So you can see that the direction wise it is opposite to that what we represent in chemistry. Chemistry में dipole moment को हम represent करते हैं towards the more electronegative atom where the electron is being shifted. In the case of physics, we represent it in terms of product of charge into distance between them. Vector quantity and the direction of this vector is from negative to positive. Why it is negative to positive in the case of physics, while it was positive to negative in the case of chemistry. जब आप इसको बुक्स में पढ़ोगे एनसीईआरटी में इसमें लिखा हुआ है इट इज अ कन्वेंशन बट कन्वेंशन जैसा कुछ नहीं होता फिजिक्स में इट इज बाय डेफिनेशन वो डेफिनेशन क्या हो सकते हैं दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस तो एसआई यूनिट के स्टैंडर्ड यूनिट होगी कूलॉम इनटू मीटर बट कूलॉम बड़ा था हमने बहुत बड़ा चार्ज होता है ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज हो नहीं सकता प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल ये तो मॉलिक्यूल पे कुछ फ्रैक्शनल चार्जेस होते हैं इट इज of the order of picocoulomb or nanocoulomb. So, जो this is SI unit. SI मतलब standard unit. The CGS unit of charge. CGS unit of charge is ESU into centimeter. CGS unit of charge is ESU or distance के लिए हुए centimeters. That is ESU centimeter called as debye. ESU centimeter is also called as debye, on the name of scientist debye. The unit of dipole moment that we practically use it is debye. सर ESU क्या होता है? Electrostatic unit. ओके सर. Electrostatic unit of charge is called ESU. One ESU हमने पढ़ा था the Coulomb's law वाले lecture में 3.6 into 10 to the power minus 10 Coulomb. So ESU सेंटीमीटर को हम डिवाइड करते हैं that is sign. अब आते हैं इस लॉजिक पे कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही क्यों है पहली बार. So जब हम इसकी बात कर रहे हैं this dipole is called conventional dipole. Conventional dipole का मतलब उसमें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव ही होनी चाहिए बट जब मोमेंट की बात करते हैं when we say moment n number of charges system का भी हो सकता है जिसमें सारे पॉजिटिव जैसे moment of force जैसे moment of mass moment of linear momentum so if you remember moment of force क्या होता है r cross l moment of momentum r cross p moment of mass is m into r. So likewise when we are using the word dipole moment of a system of n charges n number of charges irrespective of कि वो positive हो या negative हो किसी भी general system का dipole moment भी हम calculate कर सकते हैं not in the NCERT syllabus but the computer level we can use electric dipole moment of n charges.
Suppose in space there are n number of point charges present और हमें उनकी position vectors q1 is at r1, q2 is at r2, q3 is at r3, and up to qn is at rn. These are the position vectors. q1 r1 plus q2 r2 plus q3 r3 plus q4 r4 up to qn rn. Irrespective of कि कुछ negative है या नहीं है या सारे positive है, it is the product of charge and its position vector. The dipole moment of a system of charges is q1 into r1 plus q2 into r2 plus q3 r3 up to qn into rn, where rn, r2, r3 and rn are the position vector of these charges with respect to the origin. Right? r1, r2, r3, rn is position vector. q1 into r1, q2 into r2, q3 into r3. So this is a general definition of electric dipole. N number of charges हो, चाहे सारे positive, सारे negative, half positive, half negative. Dipole moment किसी भी system of point charges का हम calculate कर सकते हैं. It is not necessary that one must be negative and other should be positive. Right? Conventional dipole के लिए अगर हम इसी definition को apply करते हैं, this is for a general system of n point charges. This is again called J. So suppose we apply for this conventional charge, one conventional dipole, one negative and one positive, और ये किसी system में with respect to the origin, with respect to the origin, negative charge का position vector है r1, और positive charge का position vector है r2. By the definition of electric dipole moment, if we apply here for any conventional dipole, अगर हम इसकी ये dipole moment calculate करते हैं, so it will be equal to positive वाले का position vector है r2, negative वाले का position vector है r1, q1 r1 plus q2 r2, but q2 is minus q. Take q common, it becomes vector r2 minus r1. And r2 minus r1 become vector l, where l is the vector joining head of r1 to head of. सर एक बारी n चार्जेस रिपीट कर दो आप. जब n चार्ज होते हैं, एक सेकंड.
So there is some voltage fluctuation. बोर्ड दिख रहा है ना आपको? ये सब बोर्ड विजिबल है। ओके, थोड़ी सी लाइट में कुछ वोल्टेज हाँ सर, फ्लक्चुएशन। वो लाइट के थोड़ा बीच में फ्लिकर बोर्ड पे दिखता है, बाकी ठीक। हाँ, वो कुछ लाइट में कुछ हो रहा है फ्लक्चुएशन, आई थिंक सब। ओके, हाँ, सो हम बात क्या कर रहे थे, जब n नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं, अभी जो डिफिनेशन थी चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इट वाज ओनली व्हेन देयर इज वन नेगेटिव एंड वन पॉजिटिव चार्ज। इफ देयर आर n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस इन स्पेस, तो हम उस सिस्टम का भी डायपोल मोमेंट डिफाइन कर सकते हैं या करते हैं as the sum of product of charge and its position vector. जैसे ये Q1 into Q3 दो नहीं इसमें है तो n नंबर ऑफ चार्जेस, बट इसका भी हम डायपोल में डिफाइन कर सकते हैं चार्ज इनटू इट्स पोजीशन वेक्टर, Q1 R1 plus Q2 R2 plus Q3 R3 up to Q1 R. So when we add them, it will become the dipole moment of the system. इस डिफिनेशन को जब हम किसी कन्वेंशनल डायपोल के लिए फिट करते हैं, जिसमें एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का डायपोल मोमेंट R1, पॉजिटिव चार्ज का डायपोल मोमेंट R2, इट बिकम्स QR2 पॉजिटिव के लिए और माइनस Q2 R, Q कॉमन कर लिया। किसी भी वेक्टर ट्रायंगल में जब हेड टू हेड ड्राइंग करते हैं तो ब्रांच जब हम किसी वेक्टर ट्रायंगल में टेल को हेड से ज्वाइन करते हैं तो वो समेशन बताता है, हेड को हेड से ज्वाइन करते हैं तो वो डिफरेंस बताता है। A से B को ज्वाइन करोगे तो ये होगा B minus A. If you join head of A to head of B, it becomes B minus A. Yeah, sorry. So dipole moment जब हम किसी सिस्टम के लिए निकालते हैं तो n नंबर ऑफ चार्जेस से वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, तो वो वेक्टर बन गया L वेक्टर LS। तो ये कन्वेंशन नहीं है, मतलब व्हाट द पॉइंट हियर प्रूव इज, जो NCERT में लिखा हुआ है बाय कन्वेंशन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट्स नॉट कन्वेंशन, दिस इज बाय द डेफिनेशन ऑफ द डायपोल मोमेंट। जो डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन है उसको अप्लाई करते हैं अगर हम, तो हमें डायपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन मिल जाती है नेगेटिव से पॉजिटिव। अब ऐसे डायपोल जिनमें केवल मॉलिक्यूल जिनमें केवल दो ही एटम हो ऐसे नहीं होंगे, देयर आर मल्टीपल, लाइक हाइड्रोजन, सॉरी वाटर हैज 3, सिमिलरली वी हैव 3 CCl4। सो हम कई सारे एटम्स वाले मल्टी जिसमें एटम्स होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स के डायपोल्स को भी हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग द वेक्टर रिजल्टेंट। So dipole moment of system of charges. This was only when there is one negative and one positive charge. Suppose बहुत सारे charges हैं सिस्टम में और हम उसका dipole moment कैलकुलेट कर रहे हैं. So next is the combination of dipoles. So उसमें जितने भी dipoles होंगे हम उनको अलग-अलग आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उनके dipole moment का वेक्टर समेशन करेंगे. That vector resultant is required. Next is combination of dipoles. एक्सक्यूज मी सर, बोलो बेटा। सर आपने कहा था कि बाय डेफिनेशन जो आपने बताया था कि माइनस से प्लस में जाता है, तो फिर ये डेफिनेशन वही जैसे आपने वेक्टर के लिए बताया था, जो डायरेक्शन अगर हेड टू हेड मिला दे तो फिर वो नेगेटिव दिखाता है, वैसा ही है? वैसे ही बिल्कुल सही है, वेक्टर ट्रायंगल में हेड टू हेड को ज्वाइन करने पे वो डिफरेंस बताता है दोनों वेक्टर्स का। ओके सर। एनसीईआरटी में लिखा है कि नेगेटिव टू पॉजिटिव इज कन्वेंशन, बट इज नॉट कन्वेंशन। डायपोल मोमेंट की जो डेफिनेशन है उसको अप्लाई करने पे वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ जाता है।
ओके सर। Next is electric combination of dipoles. Yes. So अगर suppose सर माइक म्यूटेड है आपका। yeah. Okay, sorry for the interruption. Combination of dipoles. This is carbon dioxide. Carbon dioxide is polar or non-polar? Dhruv, सर क्वेश्चन एक बार रिपीट करना। बेटा अब हम पढ़ रहे हैं इसमें बहुत सारे एटम्स हो, किसी दो वाले देखे थे HCl अभी 2 3 4 5 कितने भी एटम्स हो। अब इफ इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल इसको हम अलग-अलग डाइपोल्स का कॉम्बिनेशन अज्यूम कर लेंगे और उन सारे डाइपोल मोमेंट्स का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकाल के देन वी विल फाइंड आउट कि उनमें से किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, इसमें किसका पोलर नेचर ज्यादा है। So my question is now carbon dioxide. This is a chemistry question. Carbon dioxide polar molecule होता है या non-polar? Carbon dioxide is a polar molecule or non-polar? Rob? नॉन पोलर होता है। non-polar sir. Non-polar होता है क्योंकि इसमें दो डाइपोल मोमेंट दोनों एग्जैक्टली अपोजिट। इसका इक्विवेलेंट डाइपोल मोमेंट कुछ ऐसा बनेगा। एंड पे माइनस क्यू क्यू और बीच में प्लस क्यू क्यू एंड दे रिप्रेजेंट द इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एक डाइपोल मोमेंट होता है। इस 2q को हम दो में ब्रेक कर लें, प्लस q एंड प्लस q।
minus q2 plus q minus q2 plus q, these two cancel out each other. Two equal and opposite dipole moment cancel out each other, so net dipole moment is. अगर कई सारे डायपोल मोमेंट्स हो तो हम उनको आपस में ऐड करेंगे एंड द रिजल्टेंट विल डिसाइड the net polar ratio. This is BF3. By the same logic, boron trichloride is also non-polar, though it has polar molecule. It has independent individual three different dipoles, but they are oriented at an angle of 120. The बीच में 3q 120 में minus q and minus. So these three dipoles are at an angle of 120 in the resultant. So 3 पार्ट में डिवाइड कर लो. minus q plus q minus q plus q, there are 3 dipole moment. जब 3 इक्वल वेक्टर्स होते हैं 120 डिग्री पे, किसी भी दो का रिजल्टेंट किससे के इक्वल अपोजिट, net dipole moment is 0. If net dipole moment is 0, that means it is a non-polar molecule. BF3 is non-polar, carbon dioxide is non-polar. ऐसे हम किसी भी सिस्टम पे डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं. इट इज नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा 0 ही आएगा. लाइक यस सर, अगर हम किसी चीज से कैलकुलेट करें डाइपोल मोमेंट तो हमको उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, फिर करना पड़ता है. हाँ बेटा, केमिस्ट्री लॉजिक है. केमिस्ट्री में मैं थोड़ा फिजिक्स इन्वॉल्व कर रहा हूँ. जैसे केमिस्ट्री में अगर है कि आउट ऑफ CH3 CCl4 CH2Cl2 अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलर नेचर. ये क्वेश्चन होता है केमिस्ट्री का, वैलिड क्वेश्चन है. CH3 CH2Cl2 CH3 Cl and CCl4 arrange them in the increasing order of polar nature. तो CCl4 में 4 आइडेंटिकल बॉन्ड है टुवर्ड्स टेट्राहेड्रल. CCl4 का रिजल्टेंट 0 आ जाता है, तो डायपोल मोमेंट 0. मैक्सिमम होगा CH3 का, जिसमें नीचे की तरफ 3 Cl बॉन्ड्स होते हैं, Cl और CH. इसमें ज्यादा रिजल्टेंट आएगा नीचे की तरफ. तो बेसिकली जब भी हम किसी भी पोलर मॉलिक्यूल के पोलर नेचर की बात करते हैं, तब हम उसका डायपोल मोमेंट कंपेयर कर सकते हैं. इफ सपोज लाइक अ वाटर टाइप मॉलिक्यूल, वाटर के बीच में -2q और किनारे पे कुछ लाइक वाटर ऐसा कुछ है. तो हम एक हाइपोथेसिस बना लेते हैं, नॉट एग्जैक्टली वाटर. वाटर में लोन में भी जैसे 109 एंड 20 डिग्री होता है. सपोज find the dipole moment of this system of charges placed at the corner of an equilibrium triangle. Third, dipole moment of this system. Electric dipole moment of this system of these three charges -2q at the end plus q and plus q at the other corner. तो इसमें दो अलग-अलग डाइपोल्स हैं, बीच में एंगल 60 डिग्री बिकॉज इट इज इक्विलिब्रियम. हम उसको दो अलग वेक्टर्स कंसीडर करके विल फाइंड आउट द इस बीच वाले -2q को -q और -q में ब्रेक कर लेते हैं. देन डाइपोल मोमेंट P is equal to of each bond. इसको दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले से वी कैन कैलकुलेट द नेट डाइपोल मोमेंट. Net dipole moment of this system. Root of P1 square plus P2 square plus 2 P1 P2 cos theta minus formula.
P1, P2 both are P and P. P square plus P square plus 2P square cos. Cos 60 is 1 by 2. The answer will be root 3 times QA. और ये दोनों आइडेंटिकल है तो इनका रिजल्टेंट एग्जैक्टली अलॉन्ग टू एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा. परपेंडिकुलर नोट करो. सर नेट को दोबारा बता दो आपने कैसे लिया. Yes, boss. So जब भी बहुत सारे डायपोल्स होंगे उनको अलग अलग डायपोल्स में ब्रेक करेंगे and then we calculate the net dipole moment and net dipole moment will be calculated by the vector summation. सर बोलो. सर ये बार दोबारा बता दो आपने कैसे निकाला है. बीच में -2 था, -2 को ब्रेक कर लो, एक -2 था, एक -2 था. -q और +q मिलके बन गया एक डायपोल. एक डायपोल इधर लेफ्ट में आ गया. डायपोल मोमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस. ये आ गया डायपोल मोमेंट p. -2q था, उसको दो -q को ब्रेक कर दिया. एक -2 का इस +q का डायपोल मोमेंट बन गया p, चार्ज टू डिस्टेंस. तो ये दो वेक्टर्स मिल गए जिनके बीच का एंगल है 60. दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का फॉर्मूला √a² + b² + 2ab cos थीटा वो अप्लाई कर दिया. √p1² + p2² + 2 p1 p2 cos थीटा. सर तो यहाँ पर एक पॉइंट पे आपने जो माइनस को जो रखा था आपने उसी चार्ज को दो में ब्रेक कर दिया वैसे ही करा है. -2q को -q + -q अज्यूम कर सकते हैं ना. दो अच्छा -q 2q ओके सर मुझे लगा एक ही था. ओके क्लियर है. 2q को हमने -q में अलग अलग कर लिया. एक -q का इसके साथ डायपोल मोमेंट, दूसरे का इसके साथ डायपोल मोमेंट. then we can calculate the resultant by using the vector formula. ओके, तो ये तो हमें पढ़ेगा डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं किसी भी सिस्टम का. और अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में बहुत सारे बॉन्ड्स हैं तो उनको एक वेक्टर समेशन करके we can convert it into one single dipole. Now we will see the effect of a dipole, behavior of a dipole. जैसे किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, वैसे यहाँ पर दो पॉइंट चार्जेस साथ साथ आ गए. एक नेगेटिव एक पॉजिटिव और उसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बट दिस फील्ड is different from that of point charge. This has a different formula for that of point charge. Next is electric field due to a dipole. और अपने बोर्ड की सर्विस में केवल कन्वेंशनल डाइपोल है. इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल. सो डाइपोल को जब भी हम कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी on the axis of dipole, which is also called as in axial position.
Axial position is also called as end-on position. डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड उन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या है? The line joining negative charge and positive charge. This is called electric. This is called axis of the dipole. Electric field due to a dipole in its axial position. Axial position is along the line joining the two charges. From the center of the dipole, the distance of that point is r, and the length of dipole is 2a. सर ये कौन सा वाला पॉइंट है? Point B, point A. दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है दैट इज कॉल्ड एक्सिस. तो अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं एक्सियल पोजीशन. डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिपेंड करेगा कि हम कौन से पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें. एक्सियल पोजीशन में लॉन्ग लाइन प्लानिंग है. पॉइंट ए से सेंटर से जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस आर, लेंथ ऑफ डायपोल इज 2a. Distance of point A from center is r. इस डायपोल का डायपोल मोमेंट कितना होगा? इस डायपोल का डायपोल मोमेंट कितना होगा? चार्ज into distance q into. So पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट ए के डिस्टेंस हो गया r minus a. This is half of the dipole. This is another half of the dipole. For the negative charge, this distance becomes r plus a. पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स. पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स. तो यहाँ पर जो ए है वो एक्सिस है ना डायपोल का? ए एक्सिस पे पॉइंट है. दिस लाइन इज द एक्सिस. एक्सिस के किसी एक पॉइंट पर हमें कैलकुलेट करना है जिसकी डिस्टेंस सेंटर से स्मॉल r. तो सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई हो रहा है वो कैसे, मतलब डायपोल दोनों चार्जेस कंबाइंड होकर लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की मिल के जो बनेगी उसका हमें फॉर्मूला डिराइव करना है. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल मींस इट इज द रिजल्टेंट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज बोथ. दैट नेट डायपोल मोमेंट वी हैव टू फाइंड. ओके सर. पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस है r minus a, नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस r plus a. पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होती है. E1 is due to positive charge. नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की तरफ होती है. E2 is due to negative charge. Net electric field at this point A will be the net electric field at this point will be the resultant, which is E1 minus E2. Axial position electric field because E1 and E2 are opposite. So बड़े वाले से छोटे वाले को सेपरेट करेंगे. E1 is greater क्योंकि वो पास है. E1 is the closer one. KQ by R minus A square minus KQ divided by R plus A. Solve this. R plus A square minus R minus A square, R square minus A square का होल. Simplify this electric field. ऊपर है A plus
whole square minus a minus b, that becomes a plus b, r square minus a square. Rearrange the terms to find this electric field in terms of dipole moment. पॉजिटिव चार्ज की फील्ड अवे, नेगेटिव की टुवर्ड्स, दोनों कर सकते हो। हमें करना क्या था, इसका सिंपल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, बट इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। टू बाहर निकाल लो, के Q into 2a becomes dipole moment, charge into distance, so that becomes 2k PR divided by r square minus a square whole. Electric field in axial position. सर यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज कैसे हो रहा है? हाँ बेटा, सर जो आपने बताया ना कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का कुछ यूज होगा, तो वो कैसे हो रहा है यहाँ पर? क्वेश्चन क्या था, नेट फील्ड इज द रिजल्टेंट ऑफ फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ईच चार्ज। इस पॉइंट पे दो फील्ड है, इनका रिजल्टेंट निकालो, वो नेट आ गया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिजल्टेंट ऑफ द टू। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है, किसी की पॉइंट पे नेट फील्ड इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द फील्ड प्रोड्यूस्ड एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पर पॉजिटिव में E1, नेगेटिव में E2, दोनों का रिजल्टेंट E1 माइनस E2। ओके सर, ये यूज हो रहा है बस यहाँ पर। अब इसमें वेक्टोरली देखें, अगर हम डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस की तरफ, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ, उसी डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, क्योंकि E1 हमेशा बड़ा होगा E2 से। E1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन E2, सो इसको वेक्टर फॉर्म में भी ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। एक्सियल डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2k PR divided by r square minus a square whole square, where a is half of the length of dipole। और इसको अब हम सॉल्व करके, दिस इज अ जनरल फॉर्मूला, इसमें a डाइपोल की पूरी लेंथ नहीं, a is half length of the dipole, a is only half length of the dipole। जो नेचुरल डाइपोल्स होंगे जैसे HF, HCl, HBr, ऑल दी मॉलिक्यूल, उनका साइज बहुत छोटा होगा। For natural dipoles, also called as short dipoles, R will be very very large as compared to A, क्योंकि उनकी बॉन्ड लेंथ होती है कुछ एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की, माइक्रोमीटर के ऑर्डर की। R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर में हम R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर में हम A स्क्वायर को नेगलेक्ट करके आ जाएगा। So axial position electric field for short dipole 2k R, नीचे a स्क्वायर हट जाएगा तो ये r स्क्वायर टू द पावर 4, which becomes 2kb by r। Electric field in axial position is 2kb by r। It is inversely proportional to r, but that was the result। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, एंड दैट्स हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम पॉइंट चार्ज, राइट। डाइपोल से अगर डबल डिस्टेंस पे जाएंगे तो फील्ड होगी 1/8 टाइम्स। पॉइंट चार्ज से डबल डिस्टेंस पे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली बिकम्स 1/4। फॉर शॉर्ट डाइपोल और नेचुरल डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। Dipole की electric field inversely proportional to r cube, so it is weaker than that of a point charge। बट कहीं पर भी जीरो नहीं हो सकती, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इज नेवर जीरो, इसमें कोई भी नल पॉइंट नहीं था। क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम
electric field on the perpendicular bisector of the dipole. Perpendicular bisector को ही हम equatorial position भी बोलते हैं. Next position is electric field on the perpendicular bisector, which is in equatorial position. Electric field on the perpendicular bisector of the dipole, which is equatorial position or broad side. Equatorial position or broad side. ब्रॉड साइड और मतलब एक साइड में इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक साइड में ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल इज r. One negative charge, one positive charge, and the electric field on the perpendicular bisector. सर एक चीज पूछना है पूछो. सर, जैसे जो आपने बताया था जो हमारे डायपोल बनता है, हम जगह अगर दो चार्ज को साथ साथ रखते हैं, मतलब अगर एक कम डिस्टेंस रखते हैं तो डायपोल बनता है, तो उससे कितना डिस्टेंस होना चाहिए, मतलब कि अगर हम जैसे आपने फिगर बनाया अगर इसको थोड़ा एक्सटेंड करें तो भी डायपोल रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं तो डिस्टेंस कितने भी दूर लेके जाओ, डाइपोल के बीच के चार्जेस के बीच की डिस्टेंस छोटी होगी तभी वो एक दूसरे से अफेक्ट करेंगे. नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच की डिस्टेंस बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, 1 मीटर 2 मीटर तक मैक्सिमम. बट जो नेचुरल डाइपोल्स होते हैं वो तो मॉलिक्यूल्स हैं. मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड लेंथ होती है कुछ एंगस्ट्रॉम की 10⁻⁻10 के ऑर्डर की. ओके सर. डिस्टेंस कितना भी लो सेंटर से लेकर इन्फिनिटी तक चले जाओ, ये बात है. यू कैन स्टिल अप्लाई द सेम फार्मूला. ओके सर. के पॉइंट ए पे पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स. पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स. और रिजल्टेंट दोनों का रिजल्टेंट निकालो. तो e cos theta will be added. e sin theta. पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी क्योंकि डिस्टेंस है. डिस्टेंस इज रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. Electric field at point A, now point A is this point on the perpendicular bisector due to positive or negative charge. प्लस की वो या फिर माइनस की दोनों के लिए सेम होगी. मैग्नीट्यूड वाइज इट इज सेम फॉर द प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज. इट इज k q divided by r. रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा. पॉजिटिव चार्ज की अवे, नेगेटिव चार्ज की टुवर्ड्स, दोनों का रिजल्टेंट आ गया 2 times e cos theta. Net electric field at point A which is the equatorial position, it will be 2 times e cos. The value of e and the value of cos theta, so 2 k q by r square plus a square. Cos theta is base upon hypotenuse.
base is A, hypotenuse is root R square plus A. The other Q into 2A divided by R square plus A square to the power 3 by 2. K Q into 2A, Q into 2A is a dipole moment. Equatorial position, dipole electric field in equatorial position is Kp divided by R square plus A square whole raised to power 3 by. From the equatorial position at a distance R from the center, the electric field is Kp by R square plus A square power 3 by 2. P is the dipole moment, R is the distance from center, A is half of the length of the dipole. But अगर हम इसको डायरेक्शन वाइज चेक करें, then डायरेक्शन वाइज now it is opposite to the dipole moment. Dipole moment is minus to plus, and the electric field is in opposite direction. The vector form में लिखेंगे हम, then since it is in opposite direction के लिए minus sign लगाते हैं. Equatorial position will be minus sign K P divided by R square plus A square whole raised to power 3 by 2. Equatorial position is minus Kp upon R square plus A square to the power 3 by 2. अब इसमें A again it is very small, we can replace it. For short dipole means natural dipole. R square plus A square R. तो ये बन जाएगा square to the power 3 by 2, that means RQ. Equatorial position electric field is minus Kp on RQ. Minus sign represents as the direction of electric field is opposite to the dipole moment. R distance पे axial में फॉर्मूला था 2 Kp by RQ for a short dipole. R distance पे equatorial में minus Kp by RQ. If same distance equatorial and same distance axial, the ratio calculate करें magnitude wise. For short dipole axial to equatorial, then ratio will be 2:1. The ratio will be 2:1. Short dipole के लिए electric field ratio. These are the two standard cases for board exams. Axial position और equatorial position में बस फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस था. शॉर्ट वाले डाइपोल के लिए इक्वेटोरियल में Kp by R cube और एक्सियल में 2 Kp by R. Right? Not good. एक बार दोबारा रिपीट कर दो हाँ बेटा. सर, एक बार रिपीट कर दो. ये डाइपोल है माइनस cos cos का सेंटर से परपेंडिकुलरली r. पहले जो मैंने निकाला था वो इस लाइन में था along the axis. Now it is along the perpendicular. पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होती है. डिस्टेंस अवे रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पाइथागोरस से तो Kq by r. नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स होती है Kq by r स्क्वायर. दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो 2 in cos थीटा.
2e cos theta. E is because of 1 charge, so Q by r square. Cos theta is base upon hypotenuse. बस solve कर लो आगे. Q into 2a charge into distance becomes dipole moment. R square plus a square to the power 3 by 2 बच जाएगा. Q into 2a charge into distance becomes dipole moment. R square plus a square power 3 by 2 is for जनरल डाइपोल. अगर नेचुरल डाइपोल के लिए करेंगे तो लेंथ बहुत छोटी होती है. वी कैन नेग्लेक्ट दैट स्मॉल a एज कंपेयर टू r. r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर में हम a स्क्वायर नेगलेक्ट कर देंगे. नीचे की तरफ आ गया r क्यूब. कौन सा Okay, स्टेप sir. है? विच स्टेप? विच स्टेप? सर क्लियर है अब ये वाला. ये हो गया. एक्सियल पोजीशन, इक्विटोरियल पोजीशन, ये दोनों है एनसीईआरटी में. एक थर्ड बचता है, करते हैं. पहले इसको नोट करो. Okay, so third position at a general point for a short time. Axial position, equatorial position, ये दोनों एक दूसरे से RTB next is at a general position for a short time. At a general position for short time. Voltage में problem है. Okay, third is at a general position. General position for a short time.
शॉर्ट डायपोल के लिए जनरल पोजीशन में अगर हम कैलकुलेट करते हैं, जनरल का मतलब नॉट ऑन द एक्सिस, नॉट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, समवेयर इन बिटवीन. At a distance r from the center and theta is from the line joining from the line. सर जनरल पोजीशन मतलब कोई भी रैंडम पोजीशन है डायपोल. हाँ, थीटा की वैल्यू चेंज करते तो रैंडम पोजीशन बनती जाएगी. थीटा 0 पुट कर दोगे तो एक्सिस बन जाएगा, थीटा 90 पुट कर दोगे तो इक्वेटोरियल बन जाएगा. ओके एंड सर ये मतलब जैसे आपने बताया कि जनरल पोजीशन है फॉर अ शॉर्ट डायपोल, तो ये अगर लॉन्ग डायपोल होगा तो उसके अंदर वैलिड नहीं होगा ये वाला पॉइंट. उसके लिए वैलिड नहीं होगा, जो फॉर्मूला ड्राइव करेंगे वो उसके लिए वैलिड होगा. सर ऐसा कोई पर्टिकुलर रीजन है कि उसके लिए वैलिड नहीं होगा? हाँ, समझ में आएगा. ड्राइव करते हैं पहले पॉजिटिव चार्ज के लिए अलग अलग निकालोगे थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें डिस्टेंस भी चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, कोई सिमेट्री नहीं. तो इसमें क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेटली, हम इसके डाइपोल मोमेंट वेक्टर को ही रिजॉल्व करें. ये वेक्टर है, p का एक कंपोनेंट आएगा p cos थीटा और दूसरा आएगा p sin. तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर p is resolved into p cos theta and p sin theta. p cos theta आ गया along the line joining center to that point A. Actual p is now gone. Actual p की जगह पे हमने इसको resolve कर दिया है p cos theta. And the perpendicular is p sin. p cos theta की लाइन में r distance from the center T1. T1 is the axial position. P cos theta जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की क्योंकि डायपोल एक्सियल पोजीशन में, एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट. तो E1 जो प्रोड्यूस हुई है दैट इज ड्यू टू P cos theta. ड्यू टू P sin theta इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन अपोजिट डायरेक्शन, इसके इक्वेटोरियल पोजीशन है. इन इक्वेटोरियल पोजीशन इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट के अपोजिट होती है. इसमें हमने चार्जेस को न रिजॉल्व करके, चार्जेस की अलग अलग ना कैलकुलेट करके हमने डायपोल मोमेंट को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया. p cos थीटा के लिए वो एक्सियल पोजीशन बन गया, p cos थीटा के लिए इक्वेटोरियल, और इन दोनों पे परपेंडिकुलर है, हमसे रिजल्टेंट निकालेंगे. अब जो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू p cos थीटा, वो शॉर्ट वाला यूज करेंगे. दैट्स व्हाई इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर शॉर्ट टाइप. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू p cos even because it is an axial position और किसी शॉर्ट डायपोल के लिए एक्सियल पोजीशन में फॉर्मूला था 2 kp by r2, so it will become 2 kp cos theta upon r2 in the direction of electric dipole moment, in the direction of dipole moment. Electric field due to p sin theta will be opposite. Electric field due to p sin theta will be in opposite direction. p sin theta नीचे की तरफ, e2 ऊपर की तरफ. It will be k into p sin theta divided by r. E1 and E2 are perpendicular to each other क्योंकि एक एक्सियल डायरेक्शन में थे, दूसरे इक्वेटोरियल थी, उसके perpendicular. So net electric field at point A, it will be root of E1 square plus E2 square. Root of E1 square.
E1 is 2 kp by r cube, E2 is kp sin theta by r cube. Here we are 2 kp cos theta by r cube whole square plus इस पूरे में हम kp by r cube कॉमन कर लेते हैं. kp कॉमन, नीचे से r cube कॉमन. रूट ऑफ, तो यहाँ पर नेट क्यों लिया आपने? हाँ बेटा, सर यहाँ पर नेट क्यों लिया आपने दोनों का? यहाँ पे क्या लिया नेट, क्योंकि हमें नेट चाहिए ना. वहाँ पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट तो P की कर रहे थे ना. यस सर. इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट P के लिए कर रहे हैं. हमने सॉल्यूशन करने के लिए इस फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए P को दो में ब्रेक कर दिया. पहले P cos थीटा का सेपरेट निकाला, P sin थीटा का सेपरेट निकाला. अब इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट कैलकुलेट कर लेंगे. दैट विल बी द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. इलेक्ट्रिक फील्ड तो किसी भी पॉइंट पे रिजल्टेंट होगी ना बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. P cos थीटा वाले डायपोल की E1 है, P sin थीटा वाले डायपोल की E2 है. दोनों का रिजल्टेंट आ गया E, और ये बन गया 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा. 4 में से एक को अलग कर लेते हैं. दिस बिकम्स 3 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बिकम 1. ये आ गया जनरल पोजीशन. 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्म. अब हम क्या करेंगे, तो मैग्नीट्यूड आ गया. मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. इसमें अगर एक्सियल निकालना हो, थीटा को 0 पुट कर दोगे तो 3 + 4 2 आ जाएगा. इक्विटोरियल में निकालना है, थीटा को नेगेटिव पुट कर दोगे cos 90 0. और फिर हमें इसकी डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करनी होती है. डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट एन एंगल phi. At an angle phi from the line joining center of dipole to that point. At an angle phi from the line joining center to that point. Then phi will be E2 by E1. Then phi will be E2 by E1. E2 the kp sin theta by r2, or E2 is 2 kp cos theta by r2. Divide करोगे kp kp gone. Sin theta by 2 cos theta, which is tan theta by 2. So tan phi is equal to tan theta by 2. यहाँ से हम phi एंगल कैलकुलेट कर लेंगे. And direction is represented at an angle phi. थोड़ा डेरिवेशन वाला पार्ट है, but it is asked. This is again for J. ये तीसरा वाला इंडस्ट्री के लिए नहीं है. This is for the computing level. तो डायरेक्शन को एक तो एंगल phi के टर्म्स में लिख सकते हैं, दूसरा हम इसको लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इस एक्सियल एंगल. ये जो है एंगल phi. अगर डायपोल मोमेंट के साथ लिखना है तो दिस एंगल, ये अंदर वाला थीटा इधर आ गया phi. एक्सटीरियर एंगल इज थीटा प्लस phi. थीटा ये phi. आउटसाइड एंगल आ जाएगा थीटा प्लस phi. सो अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नेट डायपोल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डायपोल मोमेंट, तो डायरेक्शन को लिखने का एक और तरीका हो गया एट एन एंगल ऑफ थीटा प्लस phi. एक तरीका था एंगल phi के रेस्पेक्ट में एट एन एंगल थीटा प्लस phi फ्रॉम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर. ये हुए इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे केसेस, एक्सियल, इक्वेटोरियल एंड जनरल पोजीशन. एक्सियल पोजीशन में 2 kp by r cube फॉर शॉर्ट डाइपोल, इक्वेटोरियल में kp by r cube फॉर शॉर्ट डाइपोल. फिर दोनों का रिजल्टेंट निकाल के हमने नेट निकाल लिया और नेट की डायरेक्शन किया. राइट. तो ये
डाइपोल्स की जो डेरिवेशन है बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, लास्ट वाला बोर्ड में नहीं आता बट कंप्यूटर एग्जाम में अक्सर यूज करते हैं। Similarly, we'll also calculate for magnetic dipoles जब हम magnets पढ़ेंगे by the exactly same method. Electric dipoles पढ़ा हमने, all the polar molecules are dipoles. Natural dipoles छोटे होते हैं, so we have two different formula, one for the dipoles and one for conventional and short dipoles. सर कि कितने मार्क्स में आ सकता है ये डेरिवेशन? 3 marks maximum होगी। ठीक है, अभी हम class we will continue, tomorrow we'll continue the force and torque on a dipole in external field. Okay, thank you. थैंक यू सर। Thanks, sir.